So, okay. So we have to search for Google Ads from here. So we are going to do the Google Ads part because it's a क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम इसको पूरा बाद में लेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कीवर्ड रिसर्चर. तो इसी के अंदर एक कीवर्ड प्लानर आता है तो हम उस पर स्विच करेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि गूगल एड्स आप ऐसे ही साइन इन नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम ओपनिंग गूगल एड्स. Here it is. And if anyone is using in the phone, it's an app on your Play Store or on your App Store. You need to download that. Then you need to click on the sign in button. So I already have my account signed in. So they shows us a lot of option um, to Ma'am, what. can you hear me? I Yes, ma'am. cannot see anything on my screen. Okay. No, it's visible. It's visible. Bhumika, please check at your end because it is visible here. Scroll or swipe the sides. Okay, so you will get to see a lot of options here. For like, I'm gonna show you. I'm switching to another account which is not signed up. So it will show you like this. When you click on to sign in button, it will show you let's get started. What's your business name? Okay, I have written my business name. You also have to write the business name. And if you have not chosen yet, if you are confused कि आपको अभी क्या करना है, what's your goal, so you need to figure that out because in the upcoming days we are going to make a website about that. So you need to be sure. And in the keyword research also you need to जो आपकी स्ट्रीम है उसी के बारे में आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है. सो यू नीड टू सेट योर गोल दैट आप किस में जाना चाहते हो, आपकी बेसिकली लाइन क्या है. इफ यू आर इनटू टीचिंग, सो बेसिकली इन विच टीचिंग यू वांट टू टीच जॉली फोनिक्स और समथिंग एल्स. सो उसका ही दिमाग में रख के आपको वो वर्ड्स या वो रिसर्च करनी है. ओके, देन हियर इट कम्स, वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड. Okay, so it's basically asking your website name, but we don't have a website right now. So you cannot sign in now. I am just showing you today that how can you do this because I have a website and I have already signed in this. So you need to click on that. And today we are going to discuss about the keywords for your business. Okay, we are going to research about your keywords, okay, for your business. So I'm going to show you how the keyword planners look like and how can you research the keywords. Okay, so Google Ads, when you sign in completely, आप अपना जब वेबसाइट का नाम भी डालोगे तो इट लुक्स लाइक दिस. देन इट्स अ वास्ट टॉपिक इन एवरीवेयर. हम गूगल एड्स से क्या बनाते हैं? कैंपेन्स. वी रन कैंपेन्स फ्रॉम गूगल एड्स and campaigns are the most important part as it help us growing our business. Okay, when we search on Google like होम डेकोर और फर्नीचर फॉर अ होम. ओके, सो जब वहां पे जो वहां पे आता है, फॉर एग्जांपल आई एम गोना शो यू. For example, I'm writing furniture or I just write home decor. Okay, I'm click.
and there here it comes. Okay, ये जो पार्ट होता है, buy home decor items online at best price, they are the campaigns, right? These also are the campaigns. Okay, so from Google Ads we make campaigns so that people can show, when people search on the Google something, so our website यहाँ पे दिख सके, हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिख सके, और हमको ट्रैफिक आए और हमारी कन्वेंस रेट ज्यादा हो, हमारी सेलिंग रेट ज्यादा हो, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि हमको कैंपेन्स, ओके, सो कैंपेन्स में हमें पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए हम सोच समझ कर कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होम डेकोर चाहिए, बट मुझे होम डेकोर में सिर्फ मैं अभी ढूंढ रही हूँ लैम्प, ओके, तो उसके लिए भी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके होम डेकोर में सिर्फ बेडशीट्स और ये वाला पार्ट है, ओके, सो इफ एनीवन सर्च फॉर द लैम्प्स और लाइक लाइट्स, अगर आपका शो अप हो गया तो आपका, तो उनको तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनको तो बेडशीट्स और ये सब नहीं चाहिए, उनको तो लाइट्स और इनमें चाहिए। तो अगर वो आपकी, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, तो ये उनको कॉस्ट करेगा जिन लोगों ने कैंपेन, ये हमारा क्लिक पर पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, ओके, सो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है, तो हमारे पैसे कटेंगे, ओके, सो हमें इस चीज को, इस कैंपेन को बहुत बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, बट इट एट द वेरी सेम टाइम इट्स वेरी हेल्पिंग, एंड इट हेल्प आवर बिजनेस ग्रो वेरी बिग, दैट, क्योंकि यहाँ पे जब हम, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था, व्हेन वी सर्च फॉर एनीथिंग इन दी इमरजेंसी, कि हमको कुछ चाहिए होम डेकोर, फटाफट देखते हैं, अभी मुझे तो मंगाना ही है, बहुत कम टाइम है मेरे पास में, सो जो भी फर्स्ट आता है ना, यू डोंट गो टू लास्ट, कि आप स्क्रॉल डाउन करके नहीं देखोगे कि और क्या है और क्या है, ओके, यू विल गो डायरेक्टली टू फर्स्ट पार्ट एंड आप उसको अंदर क्लिक करके देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, ओके, सो मैंने जैसे ही क्लिक करा ना, तो ये उनका कटा पैसा, ओके, और उन्होंने अब वेबसाइट ऐसे बना रखी, जैसे ही मैंने क्लिक करा और उन्होंने ये मुझे बैनर शो किया, ओके, हम ये सीखेंगे वेबसाइट में बनाना कि हम कैसे पीपल को अट्रैक्ट करें, वो क्या बोल रहे कि अभी से अपना अकाउंट बना लो, उसके बाद हम तुम्हें डिस्काउंट्स देंगे, ऑफर देंगे, सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि वो हमें कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, अगर हमको नहीं करना है तो हम क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ना उन्होंने हमको बेडशीट, लाइटिंग, अब इसमें सब दे रखा है, आपको बाथरूम एसेसरीज चाहिए और इतनी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है जो भी हमारी काम की है, तो हम ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट इतनी अच्छी बना रखी है कि उन्होंने ये पूरे साइट मैप्स बना रखे, इनको जो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं साइट मैप्स, आप आगे अपनी वेबसाइट में सीखोगे, सो यू नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि आपकी मेन स्ट्रीम क्या है, फिर आपके उसके सब टॉपिक्स क्या है, और जब हम वेबसाइट बनाते हैं, तो जैसे अब ये सर्टिफाइड वेबसाइट है, बिकॉज इट कम्स ऑन, ये फर्स्ट पे आ रही है, बिकॉज अगर इसने पैसे भी दिए है ना, उसके बाद भी अगर ये मेंटेन नहीं है, तो गूगल अपने आप इसकी रेटिंग कम करके इसको नीचे भेज देगी, पर अगर इसने पैसे भी दिए और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी, इसने हमको साइट मैप्स इसलिए बनाने पड़ते ताकि गूगल हमारे ईच और एवरी पेज को ना सर्टिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल इन ट्रेंडिंग वी गो टू लिविंग रूम फर्नीचर, ओके, सो नाउ हेयर कम्स द ऑप्शन, अगर गूगल इसको रिजेक्ट, अगर गूगल इसको नहीं देखता है, इस पेज को भी नहीं देखता है, या इस पेज को वो नहीं करता है कि आप सर्टिफाइड हो, तो हमको लिविंग रूम फर्नीचर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं और हम उसके सब पार्ट्स नहीं बनाते, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी बड़ी वेबसाइट में वो क्या क्या देखेगा, तो वो एक दो पेज भूल जाता है देखना, इसलिए हमें साइट मैप्स बनाना इम्पोर्टेंट है, हमको उसके लिए अप्लाई भी करना पड़ता है, ताकि they are क्लोरल्स, ओके, और वो आके हमारा चेक करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पे क्या क्या बनाया है, और वो हमारा आके चेक करते हैं, और उनको कुछ चीज कॉपीराइट लगती है या कुछ ऐसे लगता है, फॉर एग्जांपल बीच में हो रहा था ना इतने फ्रॉड कि या ना मेक माई ट्रिप का हुआ, जैसे कि उन्होंने वैसा का वैसा साइन बना के कर लिया, और इवन यू नो दैट SSS स्टोर स्टाइल शॉप, उस वाली साइट पे भी हुआ था, तो गूगल ने ये प्रोवाइड कराया अब कि वो ऐसी वेबसाइट्स को वेरीफाइड नहीं करेगी और वो उनको गूगल से रिजेक्ट कर देगी, और अब तो पेनाल्टी इतनी
बढ़ गई है कि गूगल उनको 2 years के लिए वापस उसी नाम से तो बिल्कुल नहीं आने देती. सो यू नीड टू थिंक अबाउट एवरीथिंग कि किसी चीज का कॉपीराइट तो नहीं ले रहे हो आप, किसी चीज का लोगो तो नहीं ले रहे हो, किसी ब्रांड का लोगो ब्रांड मार्क तो नहीं ले रहे हो. यू कैन चूज एनी कलर, you can choose, you go with anything but not with the copyright forms. For example in Facebook, Instagram, हम कभी कभी popularity gain करने के लिए उनका अप्रोच लेने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम का सिंबल, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम इज अ वेरी ब्रांड और कंपनी, तो हम उनका नहीं ले सकते. पर बहुत सारे हैकर्स आजकल ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों में प्रो हो जाते हैं और वो ये सब करते हैं. बट गूगल ने बस इसी के लिए पेनाल्टी लगाना चालू कर दी. इसी के लिए हम क्रॉलर्स को भी वो करते हैं अप्रोच. सो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, तो हमें हर चीज को अच्छे से करके देना पड़ेगा. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपेन्स? इज एनीवन हैज प्रॉब्लम इन दैट कि कैंपेन्स क्या होते हैं, हमें क्यों बनाने होते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. आई एम जस्ट गिविंग यू द शॉर्ट ब्रीफ अबाउट दैट. So today we are going to learn about the keyword research. तो campaigns चालू करने से पहले भी हमें keyword research करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के basis पे ही होता है. मैंने यहाँ पे बहुत सारे campaigns करे हैं. मैं at the end of the meeting आपको दिखाऊंगी वो campaigns भी, पर हम बाद में भी Google Ads का पूरा topic cover करेंगे. Okay, so you need to, when आपका sign up complete हो जाएगा, हम जब website बना लेंगे उसके बाद ही आपका sign up इधर complete होगा. तो तब तक आप इस रिकॉर्डिंग को देखकर, और इवन आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क टुडे, बिकॉज आज तुम्हें अपनी साइट के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, या इवन आप अपनी स्ट्रीम को लेकर कंफ्यूज्ड है और कुछ भी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो आपको आज अपना कीवर्ड्स पहले सोचना है. और यू कैन सर्च कीवर्ड्स फ्रॉम द गूगल ओनली. ओके, सो यू नीड टू क्लिक ऑन दैट कीवर्ड प्लानर. And then here it comes, discover new keywords and get search volume and forecast. Okay, so we need to click on the discover new keywords, and here it is that looks like. और हमको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी यहाँ पे वेबसाइट होती, तो हम अपना नाम लिखकर उस चीज को करते, बट हम बिना वेबसाइट के भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा अभी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है. तो मैं आपके उससे रिसर्च करना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रीम है डिजिटल मार्केटिंग, सो आई विल गो विद द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उदयपुर. ओके, अब मैं देखती हूँ कि लोग ये सर्च करते हैं कि नहीं करते. ओके, सो आई क्लिक ऑन टू गेट रिजल्ट्स एंड आई विल सी पीपल हाँ इस चीज को करते हैं. देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी कितना मंथली सर्चेस ही 100 से 1000 तक आ रहे हैं. ओके, और इसकी बिडिंग कितनी है कि 27 to 99 रुपीज. ओके, दैट्स अ वेरी हाई बिडिंग. हमारा इतना पैसा कट रहा था महीने का कि इतने लोग सर्च कर रहे थे. देन पीपल ऑल्सो सर्च फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग. ओके, देन देयर आर वेरी मच, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. बट यहाँ पे अब आ रहा है 10 से 100 लोग ही इसको सर्च करते हैं और इसकी बिडिंग प्राइस अभी तक पता नहीं चली है. देन फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग हियर इट इज 100 to 1K. मंथली सर्चेस इनको 0% दे रखा है, पर बिडिंग इनकी ज्यादा है 17 to 98 रुपीज. ओके, सो हमें I cannot give you homework about this because you cannot sign in. पर आगे जाके जब आप साइन इन करोगे तो मैं इसके लिए भी आपको होमवर्क दूंगी कि कैसे हम अपना कीवर्ड्स कैसे चूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उदयपुर, सो ये तो मुझे और अच्छे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट में या इवन अपनी कैंपेन्स में और क्या क्या डाल सकती हूँ, जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग और SEO ट्रेनिंग and best institute digital marketing of digital marketing. Okay, so हम उस चीज को भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे. जैसे अब किसी ने अपना कीवर्ड सोच रखा है कुछ, या उनको क्लिक हुआ है, तो आप मुझे बताओ तो मैं सर्च करूंगी आपके लिए, और फिर आपको और ज्यादा किसी को कंफ्यूजन है तो आपको समझ में आएगा. बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट करके और डोसा. Okay, so I'm gonna go with best makeup artist. No. Okay. Ma'am, I have one doubt. Like you are showing the chart now, तो उसमें you told that there is a deduction. Google deducts certain amount.
But they would be but no, he deducts, but when we हम जब कैंपेन बनाते हैं तो उसमें हमें बिडिंग प्राइस लगानी पड़ती है। जैसे कि ये बिडिंग प्राइस है ना, वो आपको मैं बाद में पूरा समझाऊंगी, बिकॉज हम गूगल कैंपेन्स नहीं कर रहे हैं आज, हम तो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। पर गूगल एड्स का पार्ट है, क्योंकि हम कीवर्ड्स रिसर्च करते ही क्यों, कैंपेन्स के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि जब पीपल हमारे लिए सर्च करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी स्ट्रीम है, आपके लिए अगर पीपल कुछ भी ऐसे सर्च करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आजकल लोग क्या सर्च करते हैं। जैसे आपने अपना पेज बना लिया अबाउट मेकअप, ओके, अभी लोग एचडी मेकअप आजकल सर्च कर रहे हैं, और आपको तो पता ही नहीं है कि लोग एचडी मेकअप कर रहे हैं सर्च, तो आपने तो नॉर्मल डाल दिया कि मेकअप और ऐसे ऐसे करके। पर व्हेन यू डिड रिसर्च ऑन द कीवर्ड प्लानर, तो इट शोज अस द एचडी मेकअप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आजकल क्या मेकअप्स को नाम देते हैं। तो आपको ये भी चीज पता पड़ेगी कि आजकल क्या ट्रेंड में, क्या ट्रेंड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू आर Can सेलिंग you अ just केक, show ओके, for Jollyphonics? Ishika, can you show for Jollyphonics? yes, okay, ma'am, is that clear? You'll gradually come to know more about it. Who asked? Who was it? Bhumika. Bhumika. Okay. Anna, we'll take this topic again. Okay, so I have just written Jollyphonics. Okay, so you need to write the location also, because यहाँ पे location का बहुत बड़ा चक्कर रहता है, because ये तो Google is very vast. It's showing us around the worldwide, so we need to write the correct location also, specific location. Okay, so in Udaipur, hardly 10 searches are there, and there is no bidding price for the Jollyphonics in Google. So यहाँ पे हम अभी हमको पता नहीं है कि Jollyphonics लिखते हैं नहीं, so हम यहाँ पे for example यहाँ लिखा हुआ है Jollyphonics in Mumbai, okay, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे हमें सजेशंस भी देता है, तो वहाँ मुंबई में लोग सर्च करते हैं, और यहाँ पे जो phonics टीचर सर्टिफाइड Phonics trainer would be there. yeah, and there are lot, okay. अब हमें उदयपुर में जैसे ये कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी कोई रेटिंग नहीं आती थी, पर यही है कि आज अगर हम कुछ चीज चालू करते हैं तो वो कीवर्ड की बिडिंग ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप Jollyphonics का लोगे, अभी जितने लोग लेते तो आपकी बिडिंग उसी हिसाब से कम होगी, बट जैसे डिजिटल Ishika, just write phonics. Just write phonics in Udaipur. okay. It's the same result. Okay. And what about tuitions? If we write tuitions? Okay. I'll write tuitions near me. Okay. So there are, okay, I'll write the location. तो बिकॉज इन उदयपुर कोई भी अपना आजकल इंस्टाग्राम और इस पे करने लगा है, क्योंकि गूगल वाली चीज बहुत पीछे जा चुकी है। फिर बट देन ऑल्सो ट्यूशन इन उदयपुर में थोड़े से हमारे हैं, फॉर एग्जांपल होम ट्यूटर, एंड बिडिंग भी इसकी है 1 रुपीज to 13, 2 to 14, एंड इट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज इसमें ऐसा है कि अगर आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो वो हमारा 1 से 13 रुपए के बीच में हमारा पैसा लगेगा, और उस हिसाब से लगेगा। और जैसे हम Jollyphonics का करते हैं, और इवन अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग का देखा तो उसकी बिडिंग प्राइस ज्यादा थी, जैसे 17 से 25 रुपए, तो हमारा एक क्लिक पे उतना पैसा कटेगा। पर अब हम जब कैंपेन्स बनाएंगे तो उस हिसाब से हम अपना अकॉर्डिंगली बजट सेट कर सकते हैं कि हमारा दिन का इतना बजट है। फॉर एग्जांपल हमारा दिन का बजट है, हमको लेके चलना पड़ेगा, जैसे हमारा दिन का बजट है 300, तो अभी हमारा, और
इसमें एक और चीज है कि अब मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि दैट्स होम डेकोर पेज, ओके, बट आई नीड टू परचेज दी लैम्प्स और दी लाइट्स, बट दे आर ओनली शोइंग अस दी बेड शीट्स फॉर एग्जांपल, ओके। सो अभी कीवर्ड्स में यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। आई शो यू। ओके, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड वाला भी पार्ट है। जैसे हमको कोई नेगेटिव कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी चीज का गूगल को नहीं लगा कि ये सूटेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल बीच में पीपल हैकर्स ऐसी लैंग्वेज, या जैसे अभी आपको बताया कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए ऐसे उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज करी थी जो उन बड़े बड़े एप्स के लिए यूज करी जाती थी। तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स वाला पार्ट है, तो गूगल आपको कैंपेन्स में ही वार्न कर देगा कि अगर आप ये कैंपेन चलाओगे तो आपका नहीं चलेगा, प्लस आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। और इवन हम भी किसी चीज को नेगेटिव करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल मुझे आई हैव टोल्ड यू yesterday also, for example I live in Delhi and I am writing courses in Delhi, okay, or but Delhi is a very vast city, so I'll write the courses in Faridabad, और उसमें फिर मैं लोकेशन में जाके अपने कीवर्ड्स को नेगेटिव करूंगी। मुझे सिर्फ फरीदाबाद के एरिया में ही वो ऐड दिखानी है, उसके अलावा मुझे कोई एरिया में ऐड नहीं दिखानी है, बिकॉज इन दिल्ली there are a lot of digital marketing institutes and in Faridabad also. So अगर आज दिल्ली, मुंबई, ये सब लोकेशन वाइज बहुत ज्यादा दूर दूर है, बिकॉज उदयपुर इज अ वेरी स्मॉल सिटी, सो वी कैन राइट उदयपुर, बट फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली और मुंबई और इन इंदौर ऑल्सो, वहाँ पे लॉन्ग रूट्स है, पीपल को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो यही देखते हैं कि हम कैसे, फॉर एग्जाम्पल दे सर्च हेयर सलून नियर मी, ट्यूशंस नियर मी, होम ट्यूशंस नियर मी, सो दे सर्च लाइक दैट। सो हमें वहाँ पे नेगेटिव कर देना है कि हमें किस कॉलोनी में, किस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल इन अहमदाबाद आई एम राइटिंग ट्यूशंस इन गांधीनगर, ओके, और मैंने बाकी पूरे अहमदाबाद की लोकेशन को नेगेटिव कर दिया कि मुझे सिर्फ और कहीं नहीं दिखाना है, बिकॉज अगर पीपल सर्च करेंगे कि ट्यूशंस इन अहमदाबाद और वो मेरी कैंपेन पे हर बार क्लिक कर रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि तो बहुत दूर है, तो वो तो मेरे से कुछ ले भी नहीं रहे और मेरा पैसा और जा रहा है। पर अगर आई विल राइट ट्यूशंस इन गांधीनगर एंड anyone is searching कि that ट्यूशंस इन गांधीनगर, बिकॉज उनका भी एम यही है कि हम शॉर्ट ट्रैवल करें, और हमारा भी एम यही है कि हम इसी गली के या इसी पूरे वास्ट कॉलोनी का अगर हमें मिले तो ही हम करेंगे, बिकॉज इन होम ट्यूशंस आल्सो यू नीड टू ट्रैवल मच एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो मैं उस चीज को नेगेटिव कर दूंगी कि आई एम ओनली टेकिंग गांधीनगर एज ए पॉजिटिव कीवर्ड, और नेगेटिव कीवर्ड में पूरा अहमदाबाद की जो भी सिटी है या वो बाकी, बस मैं अपने पॉजिटिव कीवर्ड में उसको लूंगी, तो बाकी अपने आप सब नेगेटिव हो जाएगा। हम आगे कैंपेन्स में भी ये चीज आगे पढ़ेंगे। और मैं आपको बता रही थी 3 टाइप्स के कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड मैच, वन कीवर्ड इज ब्रॉड मैच, वन इज फेस मैच एंड वन इज एग्जैक्ट मैच, ओके। So in broad match, I have just told you about that. If I have written home decor and for example in this website they are showing us everything in home decor, for example lights, bed sheets, and they provide us the whole home decor. But if we only provide the bed sheets और हमने डाला home decor, because home decor हम डालेंगे तो ये broad match हो गया, okay। broad match is basically when people search for anything like आप, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, ओके, पर मैं वहां पे फ्री में कोर्सेज नहीं सिखाती, मैं वहां पे सर्टिफिकेशंस नहीं देती, मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज देती हूँ, और मैंने अभी चालू करा है, ओके। तो अगर लोग सर्च करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, ओके, अगर मैंने अपना ब्रॉड मैच में रखा कीवर्ड को, तो यहाँ पे हमें अपने सारे कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ओके। तो हम अगर हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे रखा ब्रॉड मैच में, ओके, ब्रॉड मैच इज कि हमने अपने कीवर्ड के ना आगे कुछ लगाया ना पीछे कुछ लगाया, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग, okay, so if anyone search for digital marketing or even any content, for example anyone, Sonam ma'am is searching for digital marketing in digital marketing इंटर्नशिप, ओके, तो भी मेरा आएगा, बट मैं तो वो चीज प्रोवाइड करती ही नहीं हूँ, तो भी मेरी सर्च में आएगा कि मैं तो वो चीज प्रोवाइड करती ही नहीं हूँ, तो वो फिर भी अगर मेरा आएगा तो वो लोग क्लिक करेंगे,
क्योंकि वो हम जब किसी चीज को सर्च करते तो हम नीचे नीचे जाके स्क्रॉल करते हैं, ओके। सो अगर मेरा भी चीज आएगी इवन इन द सेकंड, बिकॉज आई एम गिविंग देम द मनी, ओके, तो दे विल शो माय एड इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल दीज आर द एड्स पार्ट। टॉप में से 3 एड्स होती है, एड्स वाला पार्ट, और नीचे का 2 होता है एड्स वाला पार्ट, ओके। इन द लैपटॉप यहाँ पे एड नहीं लिखा हुआ आता, बट इफ यू सर्च ऑन द फोन ना, यहाँ पे एड लिखा आता है छोटा सा, ओके। तो आप अभी सर्च करके भी देखना, ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला और अगर मैंने ब्रॉड मैच में डाला, फॉर एग्जांपल मैंने इसके आगे कुछ नहीं लगाया, in the phrase keywords we put commas, okay, and in the exact keyword we put brackets. So अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो वो समझेंगे कि ये ब्रॉड मैच है। ब्रॉड मैच है तो मतलब कि मैं, even Sona ma'am is searching for digital marketing internship, but I am not providing that but अगर वो उस चीज पे क्लिक करती है तो उनको तो लगेगा कि मुझे तो जो चाहिए था मुझे नहीं मिला, पर मेरी कैंपेन्स, मेरा पैसा भी तो जा रहा है उसके साथ, इसलिए मुझे अपने कीवर्ड सोच समझ के, कभी भी हमको भी यही सजेस्ट किया था पहले जब मैं सीखती थी, और आज भी इतने एक्सपीरियंस के बाद भी यही सीखने को मिला है कि कभी भी कीवर्ड्स हमारे ब्रॉड मैच में नहीं आने चाहिए जब तक हम अपनी पूरी होल एक वेबसाइट अच्छे से नहीं बना लेते या कुछ ऐसे प्रोवाइड नहीं करते। बिकॉज अगर हम ब्रॉड मैच में कुछ भी डालते तो कोई भी, हमारे पास ट्रैफिक तो बहुत आएगा, इट्स अ इजी वे टू ग्रो योर ट्रैफिक, बट हमारा उतना ही पैसा जाएगा, और जो लोग हमसे नहीं खरीदेंगे तो हमारा पैसा भी जाएगा, तो हमको लॉस हो जाएगा प्रॉफिट से ज्यादा, ओके। देन सेकंड कम्स दी फेस कीवर्ड्स, ओके। यहाँ हम फेस कीवर्ड्स ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ओके, आई हैव रिटन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे ये है फ्रेज कीवर्ड्स। तो आज कोई भी सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई और इन, ओके, if they'll search digital marketing course, only digital marketing course, so then only they'll show our campaign or they'll show our website, okay। so इसमें भी हमको फायदा है कि ये हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं लेकर आएगा, पर हमारा जो भी ट्रैफिक आएगा वो हमें सेलिंग रेट देगा, ओके। सो कोई भी सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू कोर्स, तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो ये मोस्ट यूज होता है फेस कीवर्ड, ताकि कोई भी हमारा कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, क्योंकि वो उनको काम भी आ सकती है क्योंकि उन्होंने ये सर्च करा है, ओके। देन इफ anyone search for free digital marketing course, okay, तो then भी वो नहीं शो होगा क्योंकि मैंने वो की पॉइंट्स मेरे है ही नहीं, ओके। बट कभी कभी वो शो हो भी सकता है, तो इसके लिए अगर हमें बिल्कुल अपना ध्यान रखना है बिडिंग का, तो हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं। एग्जैक्ट मैच, हम ब्रैकेट में जो चीज लगाते हैं उसको हम एग्जैक्ट मैच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स in Udaipur, okay, if anyone search for that this only exact this, okay, तभी हमारी वेबसाइट वो शो करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे भी सर्च करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इन नीमच, डिजिटल मार्केटिंग इन जैसे उदयपुर के पास कोई भी सिटीज आती है तो भी, पर कोई जब उदयपुर ही सर्च करेगा तभी हमारा दिखाएगा, क्योंकि कोई इतना ट्रैवल करके तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखना आएगा। और ऑनलाइन भी हम जब करते हैं तो हम उसका भी डाल सकते हैं, हम लोकेशन हटा के ऑनलाइन क्लासेस और हम ऐसे सब डाल सकते हैं, बट व्हेन वी गो फॉर एग्जैक्ट मैच देन हम जो भी कीवर्ड डालेंगे तो अगर लोग उसको ही सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल इन दी केक, अभी केक वाले पार्ट में जैसे कोई सर्च करेगा पिनाटा केक ओनली, ओके, सो हम पिनाटा केक को एग्जैक्ट मैच में डाल देंगे, तो जब सिर्फ कोई सर्च करेगा पिनाटा केक तभी वो शो करेगा, ओके। पर अगर कोई केक्स डाल रहा है तो हम पिनाटा केक वाली चीज को नहीं शो करेंगे, क्योंकि किसी को पिनाटा केक चाहिए नहीं, वो तो केक्स के लिए सर्च कर रहा है, राइट। तो अगर हमें अपना सब कुछ दिखाना है कि हमारी पूरी वेबसाइट है, हम सब कुछ चीजें प्रोवाइड करते, तो हम ब्रॉड मैच में जाएंगे, उसके लिए हमारा ट्रैफिक तो बहुत आएगा बट उतना ही पैसा जाएगा। देन सेकंड कम्स फेज मैच, ओके। तो इसमें जैसे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इससे आसपास कोई भी कुछ सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इवन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स, और ऐसे ऐसे करके कोई भी क्वेरी सर्च करेगा तो हमारी दिखाएगी, ओके। देन इन एग्जैक्ट, अगर कोई चीज कोई एग्जैक्टली सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल जॉली फोनिक्स इन उदयपुर,
ओके अगर ये चीज कोई एग्जैक्ट सर्च करेगा तो ही हमारा पेज दिखाएगा। और अभी हमने देखा कि जॉली फोनिक्स वाली चीज में कोई कंपटीशन नहीं था इतना। when I was doing digital marketing back then, so we also did research on the digital marketing in Udaipur. So there were no such searches or no such ratings, but today we are here that its bidding price is 17 to 25 rupees. Okay, so if you initiated that जॉली फोनिक्स और समथिंग लाइक दैट, सो आपकी बिडिंग उसी ऊपर चार्ज होगी और आपको लॉट ऑफ प्रॉफिट और गेन होगा अगर आप उस चीज को चालू करने पाएंगे, क्योंकि गूगल और पीपल को भी हमेशा नई और यूनिक चीजें चाहिए होती है। जैसे अब दूसरी सिटीज में तो जॉली फोनिक्स हमने सर्च किया तो वहाँ बहुत आ रहा है, बट in Google there is no such thing in Udaipur. If we write Jolly Phonics teachers in Udaipur, so can you write English classes in Udaipur? Yeah. Okay, so in this also people ने यहाँ पे भी सर्च कर रखा है, यहाँ पे भी कैंपेन्स चले हैं, titanium English classes, English spoken. The bidding is not that much, but yeah, it's very good. 1 to 8 rupees, 1 to 12 rupees. So in Jolly Phonics there was nothing, but in English classes there is. So like, is it that we have to use this as a keyword? Yeah, you can take for example what's the most popular. ओके सो यहाँ पे हमको और ऑप्शंस भी दिखाता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग ले सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन और बेस्ट इंग्लिश कोर्सेज। तो यहाँ ये कीवर्ड्स दिखाता है जो हम अपने कैंपेन्स में हम अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि आजकल लोग क्या सर्च करते हैं, राइट? कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इंग्लिश क्लासेस लेने के लिए, लोग क्या सर्च कर रहे हैं कि इंग्लिश क्लासेस इन उदयपुर लेने के लिए। ओके क्योंकि टाइटेनियम भी पहले बहुत फेमस था तो लोगों ने उस नाम से भी बहुत करा था, तो उनकी बिडिंग भी है इतनी 1 to 10 उस नाम की ही। Okay, anyone has any doubt today? Can you put Creative Minds Academy? प्लीज आप लोग भी अपना कीवर्ड इशिका से पूछ सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट द रिजल्ट इज कमिंग। I have written in Udaipur and there are not many searches. Only write Creative Minds Academy. Okay. So anyone has any doubts? Yeah, hi. You said that if we put in the broader way of putting the keywords, so the costing will be high. But if we are just putting the keywords, No, ma'am, I have understood your query. The costing is not high. हमारे पास लोग ऐसे आएंगे जो जैसे आपने ब्रॉड मैच में डाला डिजिटल मार्केटिंग, ओके, और लोग सर्च कर रहे हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो भी आपकी वेबसाइट शो करेगी। फिर वो ये होता है पे पर क्लिक, अगर आपकी कोई भी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है तो हमारा पैसा जा रहा है, ओके। बट वो अगर उस वेबसाइट से अगर वो स्पॉन्सर हमने ऐड चला रखा होगा तब जाएगा ना पैसा। अगर हमने ऐड नहीं चलाया हुआ है तो वो पैसा कहाँ से जा रहा है? ओके तो वो ऐड नहीं चलाओगे तो आपका गूगल पे आएगा ही नहीं ना, तो अच्छा, आपको ना ट्रैफिक मिलेगी। ऑर्गेनिक वे में हमारा आएगा ही नहीं, चाहे हम कितने भी कीवर्ड्स यूज करें। ओके बट कैंपेन्स में आपको पैसा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आपने अंडरस्टूड, वो मैं समझ गई। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे को ऐड नहीं चल रहा है तो ऑर्गेनिक वे में कोई हमें सर्च नहीं कर सकता। they can search for you, but जैसे हम कीवर्ड्स वाली बात करें मैम इधर कि हम अपने कीवर्ड्स कैसे ढूंढे। हाँ, जैसे आपने भी वेबसाइट बना ली, ओके, आपको अपने कीवर्ड्स रिसर्च करके अगर आप कैंपेन्स चलाओगे तो आजकल कैंपेन्स की ही ज्यादा वैल्यू